wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim, yeah. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. वो तुम अपनी बेटी समझोगे तो तब जाके समाज का रुख बदल सकता है। दूसरा, अगर माँ बाप लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक दहेज ही है, क्योंकि लड़कियां आगे सुख देगी जाके। 15-20-25 साल की लड़कियां हो जाती हैं, चाहे मैं घर पे काम करो ना करो, ससुराल में जाके सारा करती है, काम भी करती है, सब कुछ करती है, बच्चे भी खिलाती है, घर का ध्यान भी रखती है, और उसके बावजूद भी उनके ऊपर ऐसे ऐसे केस लगा दिए जाते हैं दहेज को लेके, हिंसा को लेके, घरेलू हिंसा को लेके। उनके साथ में इस तरह की बदसलूकी होती है। क्या दोस्तों, हमें इन सब विषय के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों? जरूरत है दोस्तों। इस व्यवस्था के अंदर कानून की तो जो जिम्मेदारी है, आज भी इतने केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं कि शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है और 28 हाई कोर्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो वहाँ पे इतने केसेस पेंडिंग में है, इतने केसेस पेंडिंग में, भाई उनका समाधान कैसे होगा? उन पे कागज लग जाते हैं, 15 साल केस लगा, 20 साल केस लगा, इतना आदमी बुढ़े हो जाएगा, इतना खत्म हो जाएगा, आदमी की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन केस खत्म नहीं होते। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देख लो या किसी कोर्ट में जाके देख लो, महिलाएं लगातार लंबी लाइन लगा के खड़ी रहती है। ठीक है भाई, उन्होंने क्या बिगाड़ा? किस चीज की सजा काटी है? इतनी लंबी लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं कि हाँ तब जाके कुछ होगा, कोर्ट में होगा। नंबर ऑफ कोर्ट्स की कमी है, नंबर ऑफ जितने भी इसमें आपके जस्टिस है उनकी कमी है। ठीक है दोस्तों, इस व्यवस्था के लिए दोस्तों हम कानून को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते दोस्तों कि कानून ही कुछ करेगा। दोस्तों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा क्या करते हैं समाज के प्रति, हमारे ये भी करते हैं कि हमें सबको एकजुट होकर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को हो, किसी का भी हो, सबसे पहले तो हमें दूसरों की लड़की को अपनी लड़की मानना होगा, उसका मान सम्मान करना होगा, चाहे फिर वो पुअर फैमिली से, चाहे फिर वो रिच फैमिली से। सबसे बड़ा एक रीजन तो ये है। दूसरा, हर माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाता है, और वो और ज्यादा पढ़ा दो, आने वाले टाइम में लड़कियों की कुछ हो जाएगी ना, फिर लड़कों को कौन पूछेगा? जैसे तुम लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, ऐसी लड़कियां चली जाएंगी लड़कों को देखने के लिए।
हमारे समाज में इतनी कड़ी सच्चाई है कि हर दिन 17 महिलाएं दहेज उत्पीड़न से मर रही है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे वो सुसाइड कर रही है, चाहे वो उसके साथ मारपीट हो रही है, चाहे वो फांसी लगा रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, हर रोज 17 से 18 महिलाएं मरती है। तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है? इस चीज का जिम्मेदार हम सरकार को नहीं ठहरा सकते। भाई सरकार तो अपने लेवल पे जो करती है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट चला दे सरकार ने, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर इशू करा दे महिलाओं के लिए, ठीक है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है ये कि हम किसी का मान सम्मान हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। हम अपनी लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए दोस्तों। और दोस्तों जितने भी हमारे भाई है, बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनको भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, जैसे वो समाज में जाके आगे ये ना कहे कि हमें दहेज दे दो। वो भी थोड़ा सा मानसिक रूप से एक्टिव रहे, इन चीजों को सोचे कि दहेज जरूरी है या नहीं जरूरी है। आपने सुना होगा, कहीं देखा भी होगा, दुल्हन ही दहेज है, ये कहीं मैंने पढ़ा था, तो इस चीज को मैंने यूटिलाइज किया कि दुल्हन ही दहेज है दोस्तों। दोस्तों मैंने वो औरतों को सड़क पे निकलते हुए देखा है दोस्तों। उनके ससुराल वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, और उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं दोस्तों, और कईयों का डिवोर्स हो रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि शादीशुदा है, बच्चा साथ में है, उसका डिवोर्स हो रखा है, फिर वो लंबी सी लाइन में वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी, गर्मी में, सर्दी में, धूप में। वो स्ट्रगल एक अलग से है, और दूसरा स्ट्रगल कि वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो उससे बड़ा स्ट्रगल है दोस्तों। अगर वो सेल्फ डिपेंड है दोस्तों, तो अगर उसके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो शायद उसको थोड़ा फेस कर सकती है। अगर आ रही है तो फेस करने के लिए एबल हो जाएगी इस चीज को। तो दोस्तों मुझे देख के पीड़ा होती है दोस्तों उन महिलाओं को कि जिनकी स्थिति ऐसी हमारे देश में जो हो जाती है, चाहे वो फिर वो हमारा फैमिली इशू हो या फिर वो आउटर सोर्स हो, चाहे वो कोई सा भी इशू है, क्योंकि महिला इस समाज का एक अभिन्न अंग है। हमें माँ बहनों को एक अभिन्न हिस्सा समझना होगा दोस्तों। जब तक हम अपनी माताओं की, बहनों की कदर नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक ये एक धब्बा रहेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों, एनसीआरबी के डाटा आप खुद उठा के देख लीजिए दोस्तों गूगल करके, कि हर साल कितने महिलाओं को मर्डर किया जाता है, कितनी महिला मरती है दहेज उत्पीड़न के कारण, या घरेलू हिंसा के कारण, या डिवोर्स के कारण दोस्तों, और कितने बच्चे बेघर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शादी करना एक सामाजिक बंधन है, ठीक है। जब औरत सामाजिक बंधन में बन जाती है शादी करके, तो जब उसका डिवोर्स होता है तो वो कौन सा बंधन है, उसे फिर वो समाज कहाँ चला जाता है, वो फिर क्यों नहीं पूछता उसको, क्यों नहीं पूछता वो समाज उसको, उसका दुख सुख भी बांट लो। जब वो उसके शादी में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है, दहेज दिलवाने में इन्वॉल्व है, इमीडिएटली बोल रहे भाई 50 लाख चाहिएगा, मैं शादी करा दूंगा, ये करा दूंगा, हर जगह तो बोली पैसों की लग रही है दोस्तों। तो आप ये बताओ दोस्तों। और जो उनसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं, ना ही उनके पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा घर से बेघर होगा, इतनी लंबी लंबी लाइनें बेचारी जा जाके खड़ी हो जाती है दोस्तों। आप ये सोच लो कि हम लोग सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं, कि हम किस समाज में रह रहे हैं दोस्तों। क्या ये एक विकसित भारत है, क्या एक डिजिटल इंडिया है दोस्तों? आप इस चीज का अंदाजा लगा लो दोस्तों, जहाँ पे महिलाओं के साथ में हर रोज, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का केस हो, चाहे फिर वो रेप केस हो, चाहे फिर वो घरेलू हिंसा का केस हो, हर रोज 20 महिलाएं मरती है हमारे इंडिया के अंदर हर रोज। और अगर हमारे देश में अगर आदमियों की आबादी ज्यादा है और ऐसे ही मतलब होता रहा, तो फिर तो वुमेन्स की आबादी भी हमारे देश में कम हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो बस यही निष्कर्ष निकाल सकती हूँ इन चीजों को, कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिएगा दोस्तों। और आज के टाइम में जितना भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है, ठीक है, डिजिटल मीडिया है, चाहे वो कोई भी है, तो उसको हमें एक सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए हर चीज को दोस्तों। इस चीज का समाधान कोर्ट कचहरी कर सकती है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें अपने घरेलू हिंसाओं से निपटना होगा दोस्तों। जब तक हम अपने घरेलू हिंसाओं से निपटने के, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, हमारे बच्चे जागरूक नहीं होगी, हमारी माँ बहन बेटी जागरूक नहीं होगी, हमारे भाई जागरूक नहीं होगी, तब तक वो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये देख लो दोस्तों, अगर एक लड़का पढ़ा लिखा है ना दोस्तों, तो अगर वो मना कर देना कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो दहेज नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर एक लड़का ऐसे बोल दिया है आसपास वालों ने, भाई तेरी तो सरकारी नौकरी है, तुझे इतना दहेज लेना चाहिए, तुझे इतना वो करना चाहिए, 10 लाख की शादी, 20 लाख की शादी, अरे यार तुम बिजनेस कर रहे हो क्या? ये बिजनेस कर रहे हो, ये कोई वस्तु खरीद रहे हो। अगर तुम कुछ वस्तु खरीद दोगे ना, तो तब जाके बिजनेस होगा, पैसे दिए जाते हैं, वहां पे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। ये तो तुम किसी की अमानत लेके आ रहे हो, किसी बाप की बेटी को लेके आ रहे हो, उनके जो है सपनों को लेके आ रहे हो अपने घर पे, ठीक है। तो उसमें दहेज का तो कहीं ना कहीं कुछ वो बनता ही नहीं है। और दोस्तों जितना भी हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे दोस्तों, वो जागरूक करेंगे, तो शायद कुछ हद तक इन चीजों से बचा जा सकता है दोस्तों। बेटे के साथ साथ में अगर बेटे भी हमारे पढ़ेंगे हमारे समाज में,
तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो आगे चल के वो इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको अपना व्यू कैसा जैसा भी लगे तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैंने छोटी सी शुरुआत की है दोस्तों, ठीक है। और ये कहते हैं ना कि शुरुआत खुद से ही होती है, पहला कदम हमें खुद ही रखना होता है, और शुरुआत 0 से होती है और खुद से होती है, कोई आगे शुरुआत नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है दोस्तों, और मैं उनको आपके सामने शेयर भी कर रही हूँ दोस्तों। जो भी आपको सुझाव होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।